Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to EA Spoken English Production. सब दोस्तों को मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी कोशिश होती है कि हम नित नए हर रोज़ आप लोग तक ऐसे वर्ड्स पहुँचाएं कि जो आप लोगों ने सुने ना हो। बाज़ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आप लोग जिससे बोर हो जाते हैं, आप मुतमिन नहीं हो पाते, आपकी जो इंग्लिश में बात करने की जो रूह है वो पूरी नहीं हो पाते। उस रॉ से हम आप लोगों तक कुछ नए 11 वर्ड्स क्विकर वर्ड्स आप लोग तक पहुंचाना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मुझे इंट्रोडक्शन दे लीजिए। Hi everyone, welcome to ES Spoken English Production. Myself Imran Ali Roy. Today we are going to do the part 5 for the 11 quicker words published by ES Spoken English. We teach online. Let's get started. The first word, that one is the couch potato. The couch potato is not a difficult word. It's the most commonly used word while someone is the most lazy person is always sleeping around the couch. The couchy, the couch potato, the person, the lazy, always watching television, eating, drinking, making merry, and not working much. We might say couch potato. हम कभी भी इस तरह के शख्स से कभी भी कोई काम एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते जो बाहर वाला हो। जैसे दही ले रहे, आप उसे भेज दें तो वो रह जाएगा। couch potato, don't expect anything from him. किससे? couch potato से, जो चारपाई का होकर रह जाता है। You cannot depend upon couch potato. Let me open the highlighter so that you could check the... Okay, just read this line. Don't expect anything from him because he is the man who is couch potato. You cannot depend upon a couch potato. He is couch potato. Couch बोलते हैं सोफे को या चारपाई को जिसके ऊपर लेटा जाता है, सोया जाता है, सोते हुए किताब पढ़ी जाती है, सोते हुए आप लेटे हुए सोचते भी हैं, बड़े बड़े फैसले वकूफ़ पज़ीर होते हैं, पंचायत बैठती है, फैसले होते हैं चारपाई के ऊपर। काउच पोटैटो ऐसा आदमी जो सोफे का ही होकर रह जाता है, सोहल किस्म का। He is used to sitting idle. I want to name him a couch potato. Finally, I have decided a name for him because this man is always sitting idle. So I want to name him couch potato in the end. Okay, let's move to the next sentence. Remember, the person who is lazy, always sitting in one place is called couch potato. The next word that is very important, gonna reveal to you, is that the cold shoulder. The cold shoulder, that means to ignore someone or to be unfriendly by some reason or purpose. To ignore someone, that means that you are not on speaking terms with a man. The cold shoulder have an example sentence, but first of all I just want to mean out. किसी से बेरुखी करना, मुंह मोड़ लेना। मुंह मोड़ लेना, बेरुखी करना, यानी पहले आप अच्छे टर्म में थे, स्पीकिंग थी आप लोगों की, स्पीकिंग टर्म में थे, बट बाद में आप लोग अनटर्म हो गए, तो वो क्या हुआ? द शोल्डर, मतलब द कोल्ड शोल्डर। ही इज गिविंग मी अ कोल्ड शोल्डर। लेट्स हैव एग्जाम्पल सेंटेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल इज वांट गिव यू द मीनिंग ऑफ दैट. दैट मीन्स टू इग्नोर समवन और बी अनफ्रेंडली. एन एग्जाम्पल सेंटेंस इज दैट वन. आई थॉट वी वर फ्रेंड्स, but the last time I saw him, he gave me the cold shoulder. He gave me the cold shoulder. That means that he is not on speaking terms with me. He is not friendly with me. He is ignoring me. Have you got my point? जब कोई दोस्त अच्छी बातें करता हो, खुला हो, लेकिन बात पे क्लोज सा हो जाए, तो वो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? Giving the cold shoulder. Why are you giving me the cold shoulder? जब आप घर जाएंगे, आप मैसेज पे लिखेंगे, Hello, why are you giving me the cold shoulder? Catch up.
कैचअप। कैचअप वो नहीं था जिसको दबाओ, ऐसे दबाओगे ना तो कैचअप, पढ़ना वैसे है लेकिन इसका मतलब वो नहीं है जो पोटैटो कैचअप होती है। ये कैचअप, ये वर्ड एक ऐसा स्लैंग है कि जब आप कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, सी यू लेटर, कैच यू अप लेटर, तो बाद में जब वापस आते तो आपने उनको मिले आप उससे आप उनको आ लेते हैं ना। चैनल पे रहिएगा, स्टे इन टच विद द चैनल, स्टिक टू अवर चैनल, स्टे ट्यून विद EA। कोई भी न्यूज़ चैनल कहता है दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक्स फॉर बीइंग विद EA, स्टे इन टच विद अस। लेकिन जब आफ्टर द ब्रेक जब वापस आते हैं तो वो क्या कहते हैं, कैच अप। बड़े अरसे बाद जब कोई मिलता है बाज़ार में, उनका आमना सामना होता है तो वो कैचअप होता है। जैसे मीटअप होता है, फेस अप होता है, तो कैचअप भी तो हो ही जाता है। अगर मैं कहूँ आई कैच यू अप लेटर, तो फिर बाद में कैचअप नहीं करना है या नहीं। अगर तो मैं बाद में उसको मिलता हूँ तो मैंने उसे क्या किया, कैचअप, हाय कैचअप, क्या कह रहा है, कैचअप। तो ये कैचअप इसी ही पिक्चर को गौर से देखिएगा, इस कंसेप्ट को समझिएगा, इसी से ही निकला है कैचअप। किसी चीज़ को आ मिलना, आड़े हाथों लेना भी कैचअप ही है, लेकिन वो लड़ने झगड़ने में आ जाता है। लेकिन जो कैचअप असल मीनिंग है वो जो मैंने आपको पहली स्टोरी सुना दी है उसी में ही है। लेट्स हैव सम एग्जांपल सेंटेंसेस, सी यू लेटर और वेलकम बैक की जगह पे कैचअप, कैच यू अप लेटर। इसके बाद जब आप दोबारा मिलते, कैच यू अप लेटर का मतलब बाद में मिलते हैं, जैसे सी यू लेटर, इसी तरह कैच यू अप लेटर। सिमिलरली वी शुड से कैच अप जब आप कैच अप करते हैं। आई कैच यू अप लेटर, हे बडीज कैच अप। मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। तो कैचअप का क्या मतलब है, हाँ जी, वेरी गुड, वही मतलब है जो आप समझ रहे हैं। सो हियर वी हैव अनदर वर्ड दैट इज क्रीप। ये वर्ड, बल्कि आपके सामने ये पिक्चर आपको फील हो रही है, चुपके से पीछा करना, अजीबो गरीब तरीके से घात लगा के बैठना, पीछा करना, झांक के देखना। ऑफिस में अगर कोई आदमी नया आता है तो पेंसिल हाथ पे होती है, ऐनक वही के वही लगी होती है, बस हल्की सी गर्दन झुकती है, चेहरे इधर को इधर के झांक रहे होते हैं, ये कौन है, चेहरे को पहचानने की कोशिश कर रहे होते हैं। जिसके साथ आ रहा था उसके साथ उसका लिंक भी सोच रहे थे, एक अजीब सी कैफियत में आ जाते हैं, तो वो क्रीपिंग अप कर रहे होते हैं। तो वो जो इस अमल को कर रहा होता है उसको क्रीपर बोलते हैं, इस अमल को क्रीप अप बोलते हैं, या फिर किसी का पीछा करना भी क्रीप अप कहलाता है। फिर एक पिक्चर मशहूर हुई थी एक लड़के की जो ऐसे पर्दे में से झांक रही होती है, बहुत वायरल पिक्चर थी जब फेसबुक नहीं हुआ करते थे। लोग इसको ओरिजिनल वॉलपेपर पे लगाया करते थे, हजाम की दुकानों पे ऐसे होता था, बसों के ऊपर पिक्चर हुआ करती थी, वो जो हिजाब टाइप ही होती थी, तो लेकर वो होता पर्दा था, तो वो ऐसे झांक रही होती है उसमें से तिनकों को हटा के, तो उसको बोलते हैं क्रीपर। झांकना, क्रीपर, झांकने वाला। ऑलराइट, क्रीप पीछा करना, घात लगाना, चुपके से पीछे पीछे आना, या फिर कोई ऐसी खबर लेना जो जासूसी टाइप हो। द नेक्स्ट वर्ड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यंग जनरेशन। बाज़ औक़ात जब आप लोग घर में बैठ के उकता जाते हैं तो अपने दोस्तों के साथ आप फजूल ऐसे ही बाहर फिरने को निकल जाते हैं। चलिए जी थोड़ा सा वार्म अप हो जाए। हैंग आउट, लेट्स हैंग आउट, लेट्स हैंग आउट विद फ्रेंड्स। आओ दोस्तों के साथ आवारागर्दी करें, दोस्तों के साथ घूमें फिरें, दोस्तों के साथ बाहर चलें। आजकल तो बाइक का ज़माना है, हर कोई चलने फिरने से आज़ार है, लेकिन सही मायने में जो पैदल चलते हैं दोस्त और कंधों पे हाथ रख के, इसको बोलते हैं हैंग आउट। बाहर को चलना, आवारा घूम निकल जाना, बल्कि बाहर जाके इतना दूर चले जाना, वहाँ पे रिहाइश इख्तियार कर लेना एक दो दिन की, इसको भी हैंग आउट कहते हैं। दोस्तों के साथ बाहर सोशल एक्टिविटीज़ भी हैंग आउट कहलाता है। सोशल एक्टिविटीज़, नेगेटिव नहीं सोचना, सोशल एक्टिविटीज़ जिसमें आप गपशप करें, चाय पिए, दोस्तों के साथ घूमे फिरे, सिनेमा जाएं, हैंग आउट।
hang out. Hang out. Let's hang out outside. He is hanging out with his friends, and I personally love hanging out with my friends. Let's hang out. Hang out. बाहर घूमना आवारा दोस्तों के साथ. The next word that is very important, we might say jack up. जब चीज़ों की कीमत बढ़ जाए, पैसे हों कम, तो चीज़ जैकअप हो जाती है. जैक एक ऐसा एक्सल और एक ऐसी मशीन की ईजाद थी जो किसी दौर में किसी चीज़ों को उठाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी. ये आप गौर कीजिए, यहाँ पे इसको जैक बोला जाता है और पंजाबी में इसको जैक बोलते हैं. जैक, वही जैक कट के लिया. वो जब टायर को या रिक्शे को उठाना हो, टायर बदलने के लिए, तो एक साइड से गाड़ी को उठाना हो तो जैक का इस्तेमाल होता है. जैकअप. तो चीज़ों का उठना भी, कीमत का बढ़ना, जैकअप. ओके. अब आजकल चीज़ें काफ़ी जैकअप हो गई हैं, उनकी प्राइस काफ़ी जैकअप हो गई है. सी पोर्ट पे जाएं तो हैवी किस्म के माल बरदार गाड़ियाँ चीज़ों को उठाता है, जो सामान को, वो जैकअप ही कहलाता है. वो सिस्टम जैकअप होता है. तो असल हमारे सोशल मीनिंग में इसका मतलब है किसी चीज़ का एक सतह से उठ जाना. 10 रुपए की चीज़ का 15 रुपए का हो जाना जैकअप कहलाता है. द नॉक वर्ड इज दैट बाज़ औक़ात रात को आवाज़ें आ रही होती है, कोई मोहल्ले से गुजरता है, बहुत अजीब अजीब बक रहा होता है, गालियाँ दे रहा होता है ऊंची ऊंची आवाज़ में, तो वो नॉक कर रहा होता है. नॉक का मतलब ये भी तो है कि हम जो खटखटाते हैं, दस्तक देते हैं ना दरवाज़ा, तो इसको तो रैपिंग बोला जाता है ना. ये होता है रैपिंग, यानी खटखटाना. लेकिन नॉक का मतलब होता है मतवज्जो कराना किसी शोर में, चाहे गाली गलौज के ज़रिए, चाहे नॉक करके. तो एक शोर सा पैदा करना भी नॉक, एक वहाँ पे स्लैंग का इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे गाली बकी जाती है. तो ही ड्रैंक एंड नॉक्ड विद बैड माउथिंग. बैड माउथिंग का मतलब यही है गालियाँ बकना. द नेक्स्ट वर्ड पीस ऑफ केक, यानी आसान सा काम. आ चाइल्ड प्ले, बच्चों वाला काम. पंजाबी में कहते हैं ना खाला जी का बाड़ा, जैसे दो का पहाड़ा. इन दोनों का काफ़ी डिफरेंस है. ये तो वैसे मतलब मैंने तो वैसे ही लिखा था खाला जी का बाड़ा, और जैसे दो का पहाड़ा, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, इनका आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है. खाला जी का बाड़ा यानी खाला जी का घर, जहाँ पे हर चीज़ सिक्योर होती है, आपको कोई काम नहीं करना पड़ता, आप सेफ फील कर रहे होते, किसी दूसरे का घर नहीं होता. सिमिलरली जैसे दो का पहाड़ा, यानी दो का पहाड़ा बच्चों को आराम से याद होता है. तो पीस ऑफ केक का मतलब है आसान, मुश्किल ना हो, आसानी से आप उसको हज़म कर सकें. पीस ऑफ केक एक वो भी बर्थडे में जो आपको शेयर मिलता है, तो वो आपको ऐसे मिलता है जिसकी कोई पूछ कुछ नहीं होती, वो आप उसके हकदार होते हैं. बट कोई काम, जैसे मैं लेट्स हैव एग्जांपल सेंटेंस, स्पीकिंग इंग्लिश इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक. स्पीकिंग इंग्लिश इज़ अ पीस ऑफ केक. ये दोनों फिक्रे तो एक जैसे हैं, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है. जौन सा नेगेटिव है वो है नॉट वाला, जो पॉजिटिव है वो नॉट के बगैर वाला, ऑफ कोर्स. अब मैं तो पर्सनली यही कहूँगा, स्पीकिंग इंग्लिश इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी. मेरे लिए आसान काम है. बट कुछ लोग कहते हैं स्पीकिंग इंग्लिश इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक, यानी इंग्लिश बोलना कोई आसान काम नहीं. लेकिन मैं उनमें से हूँ जो कहते हैं स्पीकिंग इंग्लिश इज़ जस्ट लाइक अ पीस ऑफ केक, यानी बिल्कुल ही आसान. स्क्रू अप एक तो गाली है, नेगेटिव वर्ड है, बट मेरा उधर ध्यान नहीं है. स्क्रू अप का मतलब ये भी है कुछ नुकसान कर बैठना, कुछ डैमेज कर बैठना, कुछ मिस मैनेज कर बैठना. स्क्रू यानी तकलीफ पहुंचा देना. किसी से लड़ना वो भी स्क्रू है. गाली देना आई स्क्रू यू. लेकिन मैं आपको सीधे पॉजिटिव वर्ड की तरफ ले जाना चाहता हूँ, completely mismanage or mishandle a situation. Alright, I'm sorry friend, I screwed up.
वो माजरत कर रहा है कि मैं कुछ गलती कर बैठा हूँ, मैंने कुछ नुकसान कर दिया। इसके और भी मीनिंग है जिसमें कुछ उलट कर बैठना, कुछ नुकसान कर बैठना, गलती कर बैठना। स्क्रू होता है जिससे दूसरों को तकलीफ पहुँचे। The next word is that, I hope that is the second last, trash. Trash आप हर घर में मौजूद होती है। जो चीज़ नहीं चाहिए आप उस ट्रैश में डाल देते हैं। ट्रैश में आप जब कुछ मैशअप करते हैं, जब आप चीज़ को मैस कर देते हैं। किसी की लिखाई है हैंड राइटिंग तो वो मैसी होती है, काफ़ी ज़्यादा भद्दी सी, बुरी सी। यानी कमरे में ऐसा तूफान सा बर्पा कर देना मैस कहलाता है। लड़ाई करना भी, डोंट मैस अप विद मी, मेरे साथ मैस अप मत करो। तो सिमिलरली ट्रैश वर्ड भी उसी से रेलेवेंट है। ट्रैश, डोंट ट्रैश माई कार, डोंट ट्रैश माई होम, ट्रैश द बुक। यानी अगर तो कोई कागज़ है तो वो रद्दी, अगर घर है तो उसका कबाड़ कर देना, गाड़ी का कबाड़ कर देना, घर का सत्यानाश कर देना। एनीवे, किसी चीज़ को इतना ख़राब कर देना कि वो आपके इस्तेमाल के काबिल ना रहे, उसको ट्रैश कर देना, उसकी तबाही कर देना, उसको मैस कर देना। The last word is that one is थका मांदा, zonked। थका हुआ क्या कहते हैं? zonk। zonk, that means that he is zonked, he is stiffed, he is weary. Keep this in your mind, someone is extremely exhausted। जब कोई बहुत ज़्यादा थक गया हो उसके लिए आप zonked का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। He is zonked and the next word is that one is stiffed। stiff का मतलब होता है, stiff का असल मतलब होता है अकड़ना, मसल का अकड़ जाना। तो असल थकावट तो स्टिफ होने से ही आती है। आई एम स्टिफ्ड, मैं थका हुआ हूँ। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा मेरे पट्टे अकड़े हुए हैं, मेरे पट्टे थके हुए, ना, मैं यही कहूँगा मैं थकावट महसूस कर रहा हूँ, मैं थका हुआ हूँ। और ये मैंने आप लोगों को कल भी वर्ड बताया था, weary, जिसका मतलब है थका हुआ, और ये एडजेक्टिव है। और worn out भी एक वर्ड है जो weary से निकला है, worn out, थका हुआ। नाउ तीनों आप कहाँ इस्तेमाल करेंगे? बल्कि चारों वर्ड्स को। एक्सॉस्टेड भी इसी के लिए इस्तेमाल होता है। एक्सॉस्टेड, zonked, alright, and stiffed, and weary, and worn out। 5 वर्ड्स हैं। I'm stiffed, I'm worn out, I'm zonked, I'm extremely exhausted। That's all for now. That's all for now. Thanks for being with EA, and remember, stay in touch with EA, stay tuned with EA. We have much more to teach you regarding learning and speaking English language that will help you teach your students, your friends, your children. And one thing more, there was the part 5 and you need to wait for the part 6.